Hello everyone, my name is Justice Learner and I am your English trainer. Today we are actually having a revision session and concept building session. I'll be asking you few sentences for translating in English. I'll be giving you Hindi sentences and you will be translating it in English. It will be related to the topics which we have covered yesterday, right? Models and some phrasal verbs, correct? So let's begin. So first sentence you will be translating, that is, मुझे खाना पकाना चाहिए. मुझे खाना पकाना चाहिए. Translate this. Write in comment section. Do it fast. मुझे खाना पकाना चाहिए. You can also write it on your notebook. Okay. Later. मुझे खाना पकाना चाहिए. Vishnu ji is answering, I need to cook food. Let's see some other answers as well. मुझे खाना पकाना चाहिए. Minnie is also answering, I need to cook food. मुझे खाना पकाना चाहिए. Anamika ji answering, I should cook food. Deepa ji is also answering same, I should cook food. Gyan Prakash ji same, I should cook food. Kirti ji, I should prepare food or I need to cook food. Kirti ji is going with both of the options. Okay. Anyone else? मुझे खाना पकाना चाहिए. Okay. Let me help you with this. That if you are confused between both, that which you need to put. So you will be answering on the basis of hardcore translation. Okay. You'll be answering on the basis of hardcore translation. Okay. That will create the sense as well, but the translation should be perfect. Okay. So answer on the basis for this particular sentence, answer on the basis of correct translation according to the usage. मुझे खाना पकाना चाहिए. Many of you haven't answered yet. Sangam ji has answered, I should cook food. Anyone else? Do it fast. Mayank Sharma, you did not answer. Pratiksha ji, you did not answer. Suhani ji, you did not answer. Mayank Sharma just answered. Now I should prepare food. Suhani ji, Atul ji, you did not answered. Surjit ji, I'm waiting for your answer as well. I should cook food. Yes, that's good. Um, you've also answered. Now, those who haven't answered, kindly answer. Pratiksha ji, Suhani ji, Atul ji. I should cook food. The correct translation, if I'm talking about the hardcore translation, the perfect translation, okay, that would be I should cook food. Okay. In general way, you're talking, मुझे खाना पकाना चाहिए. Okay. I would also say that we do not generally advise ourselves, but in general way, when we are talking, we can use should, because I also told you should can be used in that way. मैं खाना पकाऊं, I should cook food. मैं वहां जाऊं, I should go there. या क्या मैं वहां जाऊं, should I go there? Okay. मुझे खाना पकाना चाहिए, I should cook food. That is correct. हाँ, whatever you've done, I need to cook food. On the basis of sense, I can accept that. On the basis of sense, that is correct. I need to cook food. Okay. मुझे खाना पकाना चाहिए. I should cook food because it is in general sense. I must cook food will be taken as correct when it is very necessary. Sunita ji, please mute yourself. Okay, wait, I'm muting everyone. Yes. So I must cook food can be correct, of course, but here we have told this in general way. मुझे खाना पकाना ही चाहिए. It means that is very necessary because since morning you haven't eaten anything, so I must cook food. Okay, so listen. Every sentence, every structure in this way, like I need to cook food, I have to cook food, that can be correct. But generally, I'm speaking, I should prepare food. Right. In general way, what we'll be doing, I should cook food. Okay. So that's correct.
The first preference would be for I should cook food. I know I need to cook food is also correct. I also know I must cook food is also correct. And I can also say I have to cook food. मुझे खाना पकाना ही पड़ेगा. But that will be on the basis of sense. But in general way, if I'm talking about the hardcore translation, the perfect translation on the basis of Hindi, then it would be I should cook food. Are you getting my point? I'm not denying that you are answering incorrect, but I'm saying the preference must be given to should first in this case. Okay. Now, next question. मुझे खाना पकाना चाहिए था. मुझे खाना पकाना चाहिए था. मुझे खाना पकाना चाहिए था. अनामिका जी, ज्ञान प्रकाश जी has answered. सुजीत जी, answer everyone. अनामिका जी, ज्ञान प्रकाश जी, सुरजीत जी, संगम जी, मिनी जी, and दीपा जी. All of you are answering in the same structure. Should have, right? But some of you are doing mistake that you are adding first form after have. How can it be possible that you add first form V1 after have? Like I would like to call your name, Anamika ji. You are adding have cook, and also Sangam ji and Deepa ji. You are also doing the same. Suhani ji, you are also doing the same. Vishnu ji, you are going completely different as you have missed the concept. Should was तो कभी आता ही नहीं है. That cannot be done. Whenever we are going, it means ये आपका एक तरह से assessment हो रहा है. It means yesterday you haven't taken the class properly. कल बताया था कि जब पास्ट में चीजें होती है तो हम उसको क्या क्या बोलेंगे. उसको हम बोलेंगे कि हैव के साथ परफेक्ट में बनाना. तो जिन लोगों ने किया है आई शुड हैव कुक्ड फूड या फिर आई शुड हैव प्रिपेयर्ड फूड, those they are doing well. All right, so that will be correct. Those who are going with this, I should have cooked the food. Now next, um, uh, वह शायद झूठ बोलता है. वह शायद झूठ बोलता है. Answer this. Yes. He may tell a lie. वह शायद झूठ बोलता है. वह शायद झूठ बोलेगा. वह शायद झूठ बोले. For all of these, the answer would be correct. He may tell a lie. Vishnu ji, you are doing. He may be tell a lie. That is incorrect. After B, we do not use first form. Sangam ji, you are telling. Perhaps he tells a lie. That's correct. Anamika ji, he may tell a lie. That's correct. Now, next one. वह शायद झूठ बोल रहा होगा और वह शायद झूठ बोल रहा है. ज्ञान प्रकाश जी, मे बी ही लाइज नॉट लाई. ओके. जुगाड़ इंग्लिश में करेक्ट होगा आपका. मे बी ही लाइज अगर करेंगे तो वह शायद झूठ बोल रहा होगा या वह शायद झूठ बोल रहा है. वह शायद झूठ बोल रहा है.
वह शायद झूठ बोल रहा है या फिर वह शायद झूठ बोल रहा होगा. यस. यू आर डूइंग वेल. He may be, not may telling a lie, he may be, Vishnu ji, he may be. Whenever we are using continuous, you must remember in continuous we always use be or be form. So here we cannot use any form of be, is, am, are, was, so be itself will be used. He may be telling a lie. That is correct. Those who have done this, he may be telling a lie, they are doing well. Sangam ji, you are going with the Jugaad English. Maybe he is telling a lie. That is also correct, but if you been given the ball of gold, why are you still begging? So he may be telling a lie. वह झूठ बोल रहा होगा और वह झूठ बोल रहा होगा और शायद वह झूठ बोल रहा है. Now next, tell me this. वह शायद उसने झूठ बोला था. शायद उसने झूठ बोला था. शायद उसने झूठ बोला था. उसने शायद झूठ बोला था. सावित्री जी, you are using might. Would you relate me? What percentage of probability is found here? वह उसने शायद झूठ बोला था. सावित्री जी, what percent of probability is found here? Are you thinking like you are using might as the past form of may? No. Here originally it can be used for an individual meaning that I told you already. Okay. So there is difference on the basis of probability. When we are using may, there is a good possibility, good probability, shayad, and might, shayad he. Okay. Although it would be correct on the basis of sense, but it is not correct on the basis of the structure I want to get answered in. उसने शायद झूठ बोला था. He may have told a lie. Okay. If I asked उसने शायद ही झूठ बोला था, then in that case you would have done this. He might have told a lie. That case only might have. Okay. उसने शायद झूठ बोला था. He may have told a lie. Correct. Next, वह सुबह से झूठ बोल रहा है. Tell me this. वह सुबह से झूठ बोल रहा है और वह सुबह से झूठ बोलता रहा है. वह सुबह से झूठ बोल. सॉरी, I'm repeating, I'm refining it. वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा है. नॉट वह सुबह झूठ बोला तो he has been हो जाएगा. Yes, Savitri, you have done this. But the question is, वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा है. Okay. वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा है. Now do this, Savitri. Everyone do this. वह शायद, I'm adding शायद here. Okay. हाँ, उसमें तो has been हो जाएगा. उस क्वेश्चन को मैं वापस लेता हूँ. I did not intend to ask that. वह सुबह से शायद झूठ बोल रहा है. दीपा जी and Savitri ji, you are doing a mistake. Deepa ji, after may we do not use ing form. Savitri ji maybe cannot be used because this is perfect continuous. And also we are using models. So I have shown you the four categories where root model, then model with be, and then model with have, and then model with have been. So the fourth category you guys are forgetting. Have been. वह शायद सुबह से जो बोल रहा है और बोलता रहा है. सुबह से टाइम इज गिवन ना. Now I have given you sufficient hints. Kindly do it now. So it would be of perfect. Okay. This model would
fall under the perfect tense. वह वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा है. डू इट फास्ट once again. Perhaps he has been telling a lie since morning. Sangam ji, I can take it as correct, but I did not expect this answer. That is correct. I can't deny. Perhaps he has been telling a lie since morning. That is correct. 100% correct. But I'm expecting another answer. Excluding, perhaps. Exclude, perhaps, then answer. Is there any other way possible? Yes, Anamika ji has got this point. He may have been telling a lie since morning. Yes, I was expecting this answer. He may have been. All right. As we use perfect tenses like has been, have been, had been in past, and in future, shall have been, will have been. So in the same case, models can also have the same usage. Okay. So in this category, we have seen 4 examples. May plus V1, maybe plus V4, V4 means ing form, and may have plus V3rd, right? And may have been plus V4th, it means ing form. I hope the things are clear to you now. Okay. And even if I am saying this, वह सुबह से झूठ बोल रहा था. Even नहीं, sorry, I'm refining this, modifying this. वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा था. वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा था. Even in that case, the translation would be same. Okay, because we do not have any other option left. You may feel like we must use might, but no, that is not the case of might, because might is having another probability that is of 20% possibility, right? Okay, so now let's do it by the examples. If I ask you, वह शायद ही झूठ बोलता है, या वह शायद ही झूठ बोले, translate this one. वह शायद ही झूठ बोले. वह शायद ही झूठ बोले. वह शायद ही झूठ बोले. Do it fast, everyone. वह शायद ही झूठ बोले, और वह शायद ही झूठ बोलता है. Even in that case, you can do that. Yes, Savitri ji has answered. I'm waiting for another answer. Everyone must answer. Okay. Savitri ji, Suhani ji, they are answering. He might tell a lie. Okay. What if I ask you, वह शायद ही झूठ बोल रहा है. वह शायद ही झूठ बोल रहा है. Keep on writing on a notebook so that it can help you revise when you need that. Okay. Kindly keep on writing. If you haven't written the earlier examples, start writing from now. अभी से लिखना शुरू कीजिए अगर पहले नहीं लिख पाए आप तो. He might be telling a lie. Sujit ji has answered. Anamika ji also same. He might be telling a lie. वह शायद झूठ बोल रहा है. So have you seen how we are also doing continuous in the case of models? Of course, with models also continuous tenses can be framed. Sentences which has ongoing action. Okay. In the same way, I would say, वह सॉरी उसने शायद ही झूठ बोला था. उसने शायद ही झूठ बोला था. Even I can say this, but it would not look nice. वह शायद ही झूठ बोल चुका है. That is also correct. और उसने शायद ही झूठ बोला है. Even in that case, you will be using the same. So this is what perfect. Perfect would either be in the sense like उसने वह शायद ही झूठ बोल चुका है, or in the sense like something which is taking place in past, right? Which has happened. उसने शायद ही झूठ बोला है. He might have told a lie. That's correct. Kindly write it. This will help you revise
the concepts under modal verbs. He might have told a lie. That's correct. Now next one. वह शायद ही बचपन से झूठ बोल बोल रहा है। वह शायद ही बचपन से झूठ बोल रहा है। बचपन से वह शायद ही झूठ बोल रहा है, या वह शायद ही बचपन से झूठ बोलता रहा है। वह शायद ही बचपन से झूठ बोल रहा है। ट्रांसलेट दिस वन। वह शायद ही बचपन से झूठ बोल रहा है। अनामिका जी has answered. Savitri ji has answered. And rest all of you, I guess your concepts are not clear here. Like I see Deepa ji, Mayur ji, Atul ji, Vishnu ji, Suhani ji, Surjit ji, Pratiksha ji, Sunita ji, Shiv ji, Meng ji, Sangam ji, you are answering sometimes. Also, answer as quick as you can. Okay. He might have been telling a lie since childhood. That's correct. Why is this correct? Atul ji, you are traveling. Okay. Why is this correct? Because यहाँ पर क्या आ रहा है? वह सुबह से नहीं, वह बचपन से शायद ही झूठ बोल रहा है। शायद ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस शो कर रहा है। ऑफ कोर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका मॉडल मॉडल में भी बन सकता है, राइट? सो दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो ये दो एग्जांपल लिए हमने, चार चार, एक मे का लिया था, एक माइट का लिया था। वी हैव सीन कि हम रूट वर्ब, रूट मॉडल वर्ब लगाते हैं। पहला तो एक सिंपल वाला बनता है, दूसरा बी के साथ बनता है, कंटिन्यूअस वाला बनता है, ठीक, कंटिन्यूअस। तीसरा हैव के साथ परफेक्ट वाला बनता है, सेंस। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला बनता है। ओके, आई एम डूइंग ऑफिस वर्क, अपॉलजीज फॉर दिस। ओके, मेथोडोलॉजी। ऑल राइट, तो ये चीज आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे और करेंगे इसको, ठीक है? तो थिंग्स आर क्लियर हियर। अब आप बताएंगे मुझे, तुम्हें पक्का जाना ही चाहिए। तुम्हें पक्का जाना ही चाहिए। पक्का भी ऐड कर दिया और चाहिए भी ऐड कर दिया, दोनों ही चीजें आ गई इसमें तो। यू मस्ट गो। इवन इफ आई से तुम पक्का जाओ, है ना, और तुम पक्का जाओगे, इवन इन दैट केस यू कैन यूज मस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, आई नो द ट्रांसलेशन लाइक यू विल डेफिनेटली गो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई टोल्ड यू इफ देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी देन यू कैन गो विद मस्ट एज वेल। मुझे लगता है तुम पक्का जाओगे, आई थिंक यू मस्ट गो। और इवन मैं इसको बोलूं, मुझे लगता है तुम्हें जाना ही चाहिए, आई थिंक यू मस्ट गो। ओके, थोड़ा सा ऑड लग सकता है इसमें यू के साथ आ रहा है तो। जनरली जब हम किसी के साथ करेंगे ना कि वो पक्का सो रही होगी, ऐसा करेंगे तो जैसे मान लीजिए तुम पक्का जा रहे हो, डू दिस। तुम पक्का जा रहे हो, या तुम पक्का जा रहे होगे। इवन ये भी आपका सही होगा। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, तुम पक्का जा रहे होगे, ऐसे ये जरूर लिख लीजिएगा। तुम पक्का जा रहे होगे, ये सेंस के आधार पे ही बन रहा है। तुम पक्का जा रहे हो, उसका तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग, बट तुम पक्का जा रहे होगे, है ना। इसको आप नहीं कर सकते यू आर डेफिनेटली गोइंग। आप चाहें तो उसको ऐसे करना चाहेंगे कि यू विल हैव, नहीं, यू विल बी गोइंग ऐसे करेंगे आप चाहे, यू विल बी गोइंग डेफिनेटली, जुगाड़ में ऐसे करेंगे। बट हम यहाँ पे समझ रहे हैं मॉडल्स को। तो तुम पक्का जा रहे होगे या तुम पक्का जा रहे हो, यू मस्ट बी गोइंग। नाउ नेक्स्ट, तुम्हें पक्का जाना चाहिए था, या तुम्हें जाना ही चाहिए था। ऑब्लिगेशन को भी शो कर सकता है ये। तुम्हें पक्का जाना चाहिए था या तुम्हें जाना ही चाहिए था। यस, यू मस्ट हैव गॉन, दैट्स ग्रेट, करेक्ट। यू मस्ट हैव गॉन, बहुत बढ़िया। लिखते भी जाएंगे आप लोग, प्लीज राइट इट, इट विल हेल्प यू रिवाइज द थिंग्स एंड शेयर योर नोट्स एज वेल। यू मस्ट हैव गॉन, तुम्हें पक्का जाना चाहिए था, ठीक है, और तुम्हें जाना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन ऑब्लिगेशन को भी शो करता है, और अच्छी प्रोबेबिलिटी यानी 95 से 90 से 95% की प्रोबेबिलिटी को भी शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, हाँ, तुम्हें पक्का जाते ही रहना चाहिए, रहना
तुम्हें पक्का सुबह से जाते ही रहना चाहिए था। इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू प्रैक्टिस। तुम्हें पक्का सुबह से जाते ही रहना चाहिए था, या तुम्हें पक्का सुबह से जाते रहना चाहिए। देखिए हिंदी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है अच्छी, मैं जानता हूँ इस बात को, पर इंग्लिश में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम्हें पक्का सुबह से जाते ही रहना चाहिए, या फिर तुम्हें पक्का सुबह से जाते ही रहना चाहिए था। दोनों ही केस में आपको बिल्कुल सही आप कर पा रहे हैं। यू मस्ट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बोला था ना आपको कि ये कुछ मॉडल्स के साथ हिंदी मैच नहीं करेगा, बट अगर आप उस फ्रेमवर्क में, उस स्ट्रक्चर में उस तरह से आप यूज कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस इंग्लिश यूज हो जाएगा। कई बार आप सुनते होंगे ना कि इंग्लिश सुन रहे हैं लेकिन उसका हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं तो हिंदी निकलती नहीं है उसकी, ठीक है। और दरअसल आप निकाल भी नहीं पाएंगे। एक्चुअली एक लैंग्वेज है ना, तो इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मॉडल्स के साथ, चाहे आप बी लगा कर रहे हैं तो आईएनजी लगा लिया आपने, हैव लगा कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लगा लिया आपने, हैव बीन लगा कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म को आप दिखा रहे हैं कि ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। भले ही हिंदी नहीं निकल रही है लेकिन आपका इंग्लिश में यूज हो रहा है। इस चीज को समझते हैं, है ना। जिस दिन आप इंग्लिश में इस तरह सोचने लगेंगे उस दिन आप फ्लुएंट हो जाएंगे, सिंपल, है ना, यही चीज होती है। तो यू मस्ट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज क्या कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि देखो भाई, तुम्हें तो ये ऑब्लिगेशन है, ये तुम्हें सुबह से ही करते रहना चाहिए था, ये तुम्हें सुबह से जाते ही रहना चाहिए था, पर तुम नहीं गए, है ना, ये चीज। यू मस्ट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से जाते ही रहना चाहिए था, या तुम्हें सुबह से जाना ही चाहिए था। तुम्हें सुबह से जाना ही चाहिए था। इवन आप इसको करना चाहे तो नॉर्मल वे में कर सकते हैं। जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन सिंस मॉर्निंग, आपको ऐसा लगेगा। बट मैं इसको और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर वे में, करेक्ट ग्रामर में। मैं कह सकता हूँ यू मस्ट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा मिल नहीं रहा था रहा वाले में, ठीक है, बट आपका यूज इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। गॉट इट। तो तुम्हें पक्का सुबह से जाते रहना चाहिए था, या जाते रहना चाहिए, दोनों ही आपका एक ही ट्रांसलेशन होने वाला है। करेक्ट। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट यू विल बी डूइंग, ही इज माई फ्रेंड। मैंने एक पहले बता दिया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, और मैं बोल रहा हूँ ही इज माई फ्रेंड। क्या मैं उससे 10 रुपए ले सकता हूँ? अब बताइएगा, क्या मैं उससे 10 रुपए ले सकता हूँ? यहाँ लेने के लिए बोरो का यूज कीजिएगा क्योंकि उधार लेने की बात हो रही है, ठीक है। बोरो लगाइएगा, BORROW। वैसे टेक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोरो का यूज कीजिएगा। क्या मैं उससे 10 रुपए ले सकता हूँ, या मैं बोल ही देता हूँ उधार ले सकता हूँ? बताएंगे क्या आएगा। कैन आई बोरो 10 रुपीज फ्रॉम हिम होगा, टू हिम नहीं होगा सावित्री जी, उससे यहाँ पे टू हिम नहीं लगा सकते हम, ठीक है। कैन आई बोरो 10 रुपीज, उससे, उससे के लिए फ्रॉम हिम, यस। एट द एंड यू विल बी एडिंग क्वेश्चन मार्क, एवरीवन। कैन आई बोरो 10 रुपीज फ्रॉम हिम, एंड वाई वी आर गोइंग विथ कैन, बिकॉज मैंने आपको कंडीशन दे दी थी, मेरा फ्रेंड है वो, राइट। ओके। अब इसी को मैं और थोड़ा चेंज करता हूँ कंडीशन को। यस, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, इवन ऑफर को भी शो कर लेगा ये इनफॉर्मल वे में। जैसे मान लीजिए फ्रेंड ही है, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नाउ आंसर दिस। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? फ्रेंड है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइएगा, फ्रेंड के लिए ही मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं संगम जी, फ्रेंड के लिए मैं आप लगा रही हैं। मतलब मैं जान रहा हूँ दैट इज करेक्ट, मैं आप फ्रेंड के लिए भी लगा सकते हैं, बट जनरली मैं एम्फोसाइज इस पे कर रहा हूँ, ये इनफॉर्मल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड के लिए आप कैन यूज करेंगे। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू, ग्रेट। नाउ ओके, ही इज योर टीचर। अब बताइएगा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इवन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ के लिए भी हाउ ही लगता है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये लिखा होता है ना कहीं पे, आप जाएंगे पहले आप इसको कीजिएगा फिर बताते हैं इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात। दीपा जी, हाउ कुड आई हेल्प यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत बढ़िया, अलग किया आपने। या सावित्री जी, हाउ मे आई हेल्प यू, दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब जाते होंगे कहीं पर, बहुत ही ये पॉपुलर स्टेटमेंट होता है, एक डेस्क होता है, हेल्पिंग डेस्क, वहां पे लिखा होता है, या फिर आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह, बोलते हैं हाउ मे आई हेल्प यू सर,
हाउ मे आई हेल्प यू मैम, है ना, मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। ये दरअसल में ये हाउ जो लिखा होता है ना, हाउ, इवन अगर मैं ये भी कहना चाहूँ ना मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा व्हाट मे आई हेल्प यू, वो इनकरेक्ट होगा। इवन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ उसके लिए मैं कहूंगा हाउ मे आई हेल्प यू। अब आप कहेंगे भैया यहाँ हाउ कैसे आ जाएगा, हाउ तो कैसे की इंग्लिश होती है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन पर बेस्ड नहीं होती है, कोई भाषा ट्रांसलेशन पर बेस्ड नहीं होती जनरली। हाँ, कहीं कहीं पे समझने के लिए, जैसे मैंने हार्डकोर ट्रांसलेशन की बात की कि परफेक्ट ट्रांसलेशन ही करना है, तो वो अलग चीज होती है कि हाँ उसमें हम कर लेंगे। बट भाषा बेस्ड होती है सेंस पर। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि कैसे मदद कर पाऊंगा बताइए, है ना। जैसे एक और होता है कि आपका दोस्त कहीं पे मिल गया आपको, तो आप उसे बोलते तुम यहाँ कैसे। अब यहाँ कैसे का मतलब ये नहीं है कि आप पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आए हो गाड़ी से, वो बोलेगा कि नहीं, अ, आप बोलेंगे तुम यहाँ कैसे आए, कैसे आए हो तुम यहाँ। आप अगर वो पूछना चाहते हैं कि व्हीकल वगैरह, लेकिन आपने पूछा ना कि एक होता है ना कि जनरल वे में, अरे तू भाई तुम यहाँ कैसे, बोलते हैं ना तुम यहाँ कैसे। तो वहां पे आप ये नहीं बोलेंगे कि हाउ डिड यू कम हियर या हाउ आर यू हियर, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हाउ आर यू हियर मतलब वो अलग ही चीज हो जाएगी। हाउ डिड यू कम हियर ये भी अलग चीज हो जाएगी। तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे हो, ये अलग चीज हो गई ना। मेरी बात सुनिएगा, सेंस कैसे चेंज कर सकता है मीनिंग को। तुम यहाँ कैसे इसका मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भाई कैसे यहाँ पे, मतलब क्यों यहाँ पर, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, या तो क्यों होगा, ठीक है, वाई डिड यू कम हियर। होता है ना कि मान लीजिए फादर हैं और अचानक से उन्होंने देख लिया मार्केट में, इसको घर पे होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए था। अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे आए। तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ बाइक से आए हो, बस से आए हो, कैसे आए हो। वो गुस्से में बोल रहे हैं अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे आए, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसके पीछे, या तुम यहाँ क्यों आए हो, ये हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं बोल कुछ और रहा हूँ, मतलब कुछ और हो रहा है। मैं हिंदी में कुछ बोला मैंने, जैसे मान लीजिए फादर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया कि वो जानते हैं कि इस टाइम तो उसकी क्लास होती है, या फिर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास होती है, या कोचिंग जाना चाहिए। अब वो यहाँ मार्केट में कैसे घूम रहा है ना। तो वहां पर आप रीजन पूछना चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आए, तो तुम यहाँ कैसे, तो व्हाई डिड यू कम हियर, है ना, या फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये भी हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं व्हाई डिड यू कम हियर या व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेंटेंस कुछ और है हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ और है, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। तो इवन आप कहें कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ट्रांसलेशन वही होगा हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। मे की जगह आप शैल भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने कुड में आंसर किया है, दैट्स ग्रेट। शैल में किसी ने आंसर नहीं किया है। हाउ शैल आई हेल्प यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ शैल आई हेल्प यू। बट कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट होते हैं, तो वहां पर जैसे हाउ मे आई हेल्प यू एक पॉपुलर है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही इसको यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू। इवन आप जा सकते हैं शैल और कुड के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं। यस, सो वी हैव सीन दिस। अब मुझे बताएंगे आप लोग, मैं खाना पका पा रहा हूँ, या मैं खाना पका सक रहा हूँ। इसकी हिंदी मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें उसको, इसलिए मैं खाना पका सक रहा हूँ। कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में लगा दिया मैंने। कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एबिलिटी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खाना पका सक रहा हूँ, पका पा रहा हूँ, पकाने में सक्षम हो रहा हूँ। थोड़ा सा समझिएगा और बताइएगा मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आर यू एबल टू आंसर, यस। अनामिका जी ने आंसर किया, आई कैन बी एबल टू कुकिंग, नहीं, आई कैन बी एबल टू